Good morning, students. So in earlier video you have seen the types of friction. Okay, so I have already told you there are three types, that is static friction, sliding and then rolling friction. Then comes the friction which is sometime useful. Okay, so we will cover certain things under this, that friction is a necessary evil. Okay, necessary evil means it's a bad thing but it is necessary also. Okay, so sometimes it's useful but sometimes it is harmful. So we will see friction is sometimes useful. Friction is useful for many of our daily activities, right? It is possible to hold a tumbler due to friction between the hand and the tumbler. So we will see some of the examples in our daily life where we need to have a friction, right? So first is, suppose your hands are wet or your hands are oily, and if you want to hold a glass, which so you will feel that your glass that gets slipped on from your hand. Why? Because there is less friction. So if there will be no friction, you will not be able to hold anything in your hand. So this thing told us that this friction is necessary. Okay, now see, friction between the feet and ground help us to walk on the ground. So now just imagine, if there is no friction between your feet and the ground, then what will happen? Will you be able to move? So you will simply say no, right? So if there will be no friction, we are not able to walk even, right? It is possible to write with the pen or pencil on a paper due to friction between the pen or pencil and the paper. So second thing is, when you write on the paper with a pencil or pen, so this is also possible just because of the friction that is between the nib of the pen and between the paper. So only just because of that friction you are able to write. It is possible to write on a blackboard due to the friction between the chalk and the blackboard. Okay, so, same thing, if you have to write something on a board, so there must be friction between the chalk and the board. If there is no friction, then there will nothing you can write on the board. Okay. Friction between the tires and the road helps automobile to move on the road. Okay. Similarly, if there is no friction between tires and road, so that will get slip on and that will not be able to. This is similar to the like you people walk on the ground. Okay, so this is like you're walking. Friction between the bricks help in the construction of building. Obviously, when you made a building, when the labor, the mason, they lie these bricks one by one on the other, so there is friction between the two tiles, two bricks. If there is no friction, then it won't have been possible for them to construct the building. So whatever the example I have written here, I have there are the pictures also. Just to hold the glass, to walk, write with the pen, chalk, friction between the tire and the road, and then construction of the building. Okay, so from these above examples we see that friction is sometimes useful, and in your daily life you might have seen many examples and you can notice them also. So but friction is sometimes undesirable. Okay, it is not necessary that always the friction will be useful, but sometimes the friction is undesirable. For example, soles of shoes wear out due to friction. Because we walk, we use shoes, so the sole that comes in contact with the ground, and after some time, just because of the friction, the soles of the shoes that wear out. Okay, so you can see this from this example. This happens with the shoes, you might have seen, right? Similarly, tires of bicycle and automobiles wear out due to friction. So you know this, that after some time, if your car, your vehicles are very old, so after some time these this bicycle or automobile tires, they wear out. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, there will be less friction between the road and the tire. The next is steps of staircase and foot over bridges in railway station wear out due to friction. So you might have seen many people, they walk on the railway station
and bridges over the railway station and the staircase you can see here, right? आप जो stairs होंगी तो बार बार वहाँ से अगर कुछ आना जाना किसी का रहता है तो वो चीज़ जो होती है वो wear out हो जाती है just because of the friction between the feet and that stairs. Knives and razors lose their sharp edges due to friction. Obviously, you will notice that the kitchen scissors and knives हैं, after some time they lose their sharpness just because of the friction. ठीक है, and these are the things without sharpness they are useless. ठीक है, so just because of the friction they lose their sharpness. So from these examples we can say that friction is sometimes undesirable. ठीक है. Now thing is, if sometime we need there are certain examples where we need to increase the friction. So how can we increase the friction? Sometime there are conditions when we need to reduce the friction. So how can we reduce the friction? So let's see. First is increasing friction. ठीक है, friction can be increased by increasing the roughness of the surfaces in contact. That I told you earlier, more the roughness of the surface, more will be the friction. So if we have to increase the friction, we have to increase the roughness of the surface which are in contact. For example, the soles of shoes are grooved to have a better grip on the floor. तो आपने देखा होगा उसका जो soles होती है that are not flattened. Some grooves are there so that less surface that comes in contact, and by increasing the roughness of that surface we can increase the friction. The tires of vehicles are treaded to increase the grip on the road. आपने देखा होगा वो भी प्लेन नहीं होते हैं जो टायर्स होते हैं, they are treaded मतलब you can see these are patterns or some designs and certain this kind of things are this is called treaded, so that we can increase the grip, and with the increase in the grip there will be increase in the friction, there will be increase in the roughness, and that will leads to increase in the friction. The brake pads of vehicles are rough to stop moving vehicles when the brakes are applied. ठीक है, तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं व्हीकल्स के, आप देखते हो कि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, व्हीकल जो है वो स्टॉप कर जाता है, लेकिन हमको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है बिटवीन द टायर एंड सरफेस दैट एग्जिस्ट. सो जो ब्रेक पैड्स होते हैं व्हीकल के वो भी रफ बनाए जाते हैं, सो दैट कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तभी तो वो व्हीकल जल्दी से रुक पाएगा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो वो इतनी जल्दी स्टॉप नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स are made rough so that to stop moving vehicles when the brakes are applied. Gymnasts apply some coarse substances on their hands for a better grip. तो आपने देखा होगा जो जिम्नास्ट होते हैं या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो हाथों पे थोड़ा पाउडर या कुछ इस तरह से लगाते हैं, या आपने देखा होगा जो भी मूवीज़ में दंगल या जिसमें रेसलिंग होता है तो वो हाथों पे बार बार मिट्टी लगाते हैं रेत से अपने हैंड्स को, सो दैट कि बेटर ग्रिपिंग, हैंड्स पे स्वेटिंग हो जाता है तो गीले हो जाएंगे तो फ्रिक्शन कम होगा तो होल्डिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी. तो इस केस में क्या होता है कि वो अपने हाथों में बार बार मिट्टी लगाते हैं सो दैट जो मॉइस्चर है, जो स्वेटिंग है, वो मिट्टी उसको ऑब्जॉर्व कर ले और उनके हैंड्स ड्राई हो जाएं. तो इसी तरह से जिम्नास्ट जो होते हैं वो अपने हैंड्स पे बार बार जो है कुछ सब्सटेंस को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि हैंड्स में ग्रिपिंग ज़्यादा रहती है जिस चीज़ को उनको होल्ड करना है. सो these are the examples. In these ways we can increase the friction. ठीक है, तो जहाँ पे हमको कई बार लगता है कि फ्रिक्शन मतलब इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है तो हम उस सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ़, और रफ़ करने से क्या होगा, वो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. Then comes the reducing friction, but sometime it happens that we need to reduce the friction, right? So in that case certain examples in which we can reduce the friction. So where we need to reduce, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है while playing कैरम बोर्ड, राइट, कि जब भी आप घर पे कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आपने देखा होगा जो स्ट्राइकर है तो आप बार बार वहाँ पे उसके बोर्ड के सरफेस के ऊपर पाउडर लगाते हैं. ठीक है, वाई, बिकॉज यू हैव नोटिस वेन एवर यू अप्लाई द पाउडर देन व्हाट विल हैपन, दैट स्ट्राइकर मूव्स वेरी फास्ट, बिकॉज उस केस में क्या होता है, सरफेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होगा, और कम फ्रिक्शन होगा तो स्ट्राइकर बहुत फास्टली मूव करेगा.
ठीक है। सो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है वेयर वी नीड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. सो लेट्स सी, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर्स और ऑयल्स एंड ग्रीस. तो डिपेंड करेगा कि कैसा सरफेस है. अगर मैकेनिकल पार्ट्स हैं, मेटल से बने हुए हैं, तो एट दैट प्लेसेस वी नीड ऑयल्स और ग्रीस. ऑटोमोबाइल है जिसमें हम ग्रीस यूज़ करते हैं. ठीक है, आपके डोर है घर पे, समटाइम बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं, जाम हो जाते हैं. तो इन दैट केस यू नीड ऑयल फॉर द एज लुब्रिकेंट. पाउडर है, जैसे मैं आपको बताया कैरम बोर्ड के केस में आप पाउडर यूज़ कर सकते हो एज लुब्रिकेंट. तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है. जहाँ पे हमको फ्रिक्शन कम करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. यूजिंग रोलर्स और व्हील्स. तो दूसरी चीज़ हमने देखी है कि हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रोलर्स, क्योंकि हमने क्या बोला, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन. तब रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होता है कि व्हील्स जो है अगर उसका यूज़ करें तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा. आपने देखा आपके ट्रॉली बैग्स होते हैं. ठीक है, ट्रॉली बैग्स के केस में क्या होता है कि अगर आप दूसरे बैग को स्लाइड करो और ट्रॉली बैग को स्लाइड करो तो कि आपको किस केस में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. ऑब्वियसली जिसमें टायर नहीं है उस केस में आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जिसमें टायर हैं, ठीक है, ट्रॉली बैग जिसमें व्हील्स है नीचे, तो उस केस में क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा. फ्रिक्शन कम होगा तो फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो व्हील्स और रोलर्स को यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग बॉल बियरिंग्स. बॉल बियरिंग्स होता है कि आपने सुना होगा बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या है, जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको बॉल्स दिख रहे होंगे, इनको हम यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जब ये मेटल और ये मेटल, दोनों मेटल के बीच में आपने देखा है कि बॉल्स हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉल बियरिंग लगाने से उन दोनों सरफेसेस, मेटल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. अगर वो साथ साथ में रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो मेटल्स हैं जल्दी ही वो वेयर आउट हो जाएंगे और जाम भी हो सकते हैं, और ऑक्साइड मतलब उन वो क्या बोलते हैं उसको, कि वो फिक्स हो जाएंगे, उनका मूवमेंट इतना फ्रीली नहीं हो पाएगा. अगर रोलर्स हम उसमें लगा देते हैं, बॉल बियरिंग्स बोलते हैं इसको, बॉल बियरिंग्स अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट इतनी जल्दी वियर आउट नहीं होते हैं और फ्रिक्शन भी उसमें कम हो जाता है. वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन ए कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. ठीक है, oil or grease is applied between moving parts of machines to reduce friction, that you already know. आपकी साइकिल अगर आप यूज़ करते हो, राइट, तो उसकी जो चेन होती है, अब चेन इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट पेडल, तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो वियर आउट हो जाती है, जाम भी हो सकती है. तो आप क्या करते हो, ऑयलिंग करते हो चेन की, सो दैट उसका स्मूथ रनिंग हो, स्मूथ रोलिंग हो. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल वेयर मोस्ट पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर lubricated with the oil or grease. Rollers are used in luggage bags to reduce the friction, that is also you have seen. Wheels are used in vehicles to reduce the friction. ठीक है, और vehicles हैं उसमें हम लोग wheels यूज़ करते हैं just because to reduce the friction. Ball bearings are used in ceiling fans, bicycles, vehicles to reduce the frictions. ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे हमको ज़रूरत होती है. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आपके पास आता है फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन. अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन है मतलब कि पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि फ्लूइड होता क्या है. ठीक है, साइंस की टर्म में जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके अगर हम एक वर्ड दें तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स. ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड. तो फ्लूइड में गैसेस भी आ सकती हैं और लिक्विड भी आ सकते हैं. एक और चीज़ आपको यहाँ पे टर्म लर्न करनी है विच इज़ ड्रैग. ड्रैग क्या होता है, जो फ्लूइड्स जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं. तो फ्लूइड्स में क्या बोल दिया हमने, गैसेस भी हो सकती हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं. अगर गैसेस आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैग. अगर फ्लूइड्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग. ठीक है, तो ड्रैग मतलब फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स. फ्लूइड्स में दोनों चीज़ें आ गई, गैसेस और लिक्विड्स.
Okay, so fluid friction is a force of friction exerted by liquids and gases on objects moving through them. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एयर में जा रहा है तो एयर जो होगी उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ड्रैग. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में जा रहा है, लिक्विड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो लिक्विड में मूव कर रहा है तो लिक्विड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स. और इसके केस में हम क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग. तो हम उसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रैग. ठीक है. फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, अब फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्या है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जितनी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी शेप कैसी है. थर्ड इज नेचर ऑफ द फ्लूइड, और थर्ड है जिस फ्लूइड में वो मूव कर रहा है उसका नेचर क्या है. ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स. स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की, कौन से मीडियम में वो, नेचर ऑफ द फ्लूइड मतलब वेदर इट इज़ ए गैसेस और इट इज़ लिक्विड. एंड नेक्स्ट इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है. ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है, अब आपने देखा होगा एरोप्लेन्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनकी आगे से जो फेस होता है, जो शेप होती है, स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब है जो आगे से इस तरह का जो शेप होता है. ठीक है, इस तरह की शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप. तो ये शेप से क्या होता है, जो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग. तो जो ड्रैग है वो कम लगता है. ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन शेप जो होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. ठीक है, अब बर्ड्स को देख के ही एरोप्लेन की शेप को उस तरह का शेप दिया गया है आगे से, सो दैट उससे क्या होगा, जो ड्रैग होगा दैट विल बी लेस, यानी कि फ्रिक्शन विच इज़ अप्लाइड बाय द फ्लूइड दैट विल बी लेस. ठीक है, सो बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. तो वो उनके पास नेचुरली होती है. फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. आप देख सकते हो कि जो फिश है उसकी बॉडी जो होती है वो भी आगे से शेप जो है उसकी दैट इज स्ट्रीमलाइन शेप, सो दैट दे कैन रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. Aeroplanes and spacecraft have streamlined body to reduce the fluid friction. अब सॉरी, जैसे एरोप्लेन्स होते हैं या आपके जो स्पेस बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, तो उनका भी देखो आप हमेशा पॉइंटेड रहता है, आगे से स्ट्रीमलाइन रहता है. तो स्ट्रीमलाइन इसलिए रहता है सो दैट बिकॉज दे आर गोइंग टू मूव इन द एयर. सो बिकॉज एयर, what I told you, there will be friction, there will be drag. Just to reduce, we cannot, we can say we cannot destroy the whole drag, we can reduce that friction. ठीक है, so just to reduce that fluid friction, these particular streamlined shapes are given to these bodies. ठीक है, so this is what all about this your chapter. ठीक है, बहुत easy है. फ्रिक्शन है जिसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, इसकी टाइप्स क्या क्या होती है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है, आप कैसे इसको फ्रिक्शन को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है, और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड learn this very easy chapter. This comes under the portion of your physics. Okay.